बिकॉज पुराने ज़माने में विमेन को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलता था या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ठीक है यू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। आई स्ट्रांगली बिलीव कि विमेन कैन बी मच बेटर सेवर्स, मच बेटर मनी मैनेजर्स, मच बेटर इन्वेस्टर्स। अचानक से गोल्ड एंड सिल्वर में जो फॉल आया, वो फॉल आने का मतलब ये नहीं कि गोल्ड एंड सिल्वर खराब है, उसका मतलब यही था कि What are your advice to the women? How do they manage their personal finances? सो दैट इज द सेम थिंग कि गोल्ड में आप रहिए, बट गोल्ड कैन नॉट बी 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट कि इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल कि जहाँ पे चीनी या गुड़ दिखेगा वहाँ चींटियाँ आएगी। Correct. तो जहाँ पैसा दिखेगा वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से उसको लूटने के लिए आएंगे। एक होते हैं कि आपको रैंडमली एक मैसेज आता है, योर KYC इज एक्सपायर्ड, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड कंप्लीट योर KYC। Right. ऐसी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। Today, women are running businesses, leading boardrooms, and even managing households. But when it comes to creating your own wealth, they often take a backseat. It has to be changed because whether you are a homemaker or running businesses or a single woman navigating life, financial independence is not a luxury, it's a necessity. And that's what we all are here to discuss about is how do we help you to actively manage your wealth just by moving from passenger seat to driver seat for your own financial journey. We'll also discuss about real life stories, problems, and of course solution. And for that, I have Mr. Saurabh Bajaj, who is CEO of Nidhi Investment and holds the prestigious FRM degree awarded by GARP USA. And I'm proud to say that he is amongst those 15,000 professionals who has been awarded with this degree. His blog www.professorbajaj.com has a readership from 91 countries across the globe. Till date, he has trained more than 15,000 professionals from 350 plus organizations that includes income tax officers, businessmen and bankers. He is also channeled in YouTube channels and invited by various TV channels like CNBC TV 18, Spin TV, etc. So, if you have thought that investing is not for you or don't know how to begin yet, then you must watch this show, Lead Her Way. So, let's welcome Saurabh. Thank you so much, Saurabh, for joining this show today. So, Saurabh, when it comes to creating your own wealth, we have statistics that more than 50% of working women also don't know how to invest, and this is being proved in one of the survey done by Tata AI Insurance. So, in fact, if I give you my example, I was also like this before COVID, and I'm also a chartered accountant, which has been considered as one of the people who are CA. They've been considered as finance expert. Right. But surprisingly, earlier everything was dependent on my husband. He used to take care of my investment. Right. And of late, I've realized that if I need to live my life the way I want, I need to work on my wealth creation. Right. So I've started working on it, but I'm surprised why I was not doing it earlier. Is that we don't have any role model to look up to, like our mothers, because they also do not invest. Okay, or perhaps we are wired like this, or there's ingrained in our system that men are better than us in terms of handling money. So with this, just going on, I just the same inspiration going on. Want to understand from you, Saurabh, how because you also manage wealth of the people, and I'm sure you must have many clients who are women. Absolutely. So can you share any anecdote from your end of any of your client where you have helped him or helped her to craft their financial plan? So just want to understand from you any story. Sure. So thank you, Shubha, for inviting me here. So first of all, let me answer the first part of your query कि क्यों women बैक सीट ले लेती हैं या क्यों उन्हें लगता है कि हमारे फादर या हमारे हस्बैंड फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। आई वुड कॉल इट द जेनेटिक मेमोरी
कि बिकॉज पुराने ज़माने में विमेन को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलता था या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ठीक है यू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड और यू टेक केयर ऑफ द किड्स। तो वो जेनेटिक मेमोरी की वजह से उनको ये लगने लगा कि हाँ ये हमेशा से मेरा काम ये है और पैसा संभालना या पैसे को मैनेज करना ये हमेशा से मैन का ही काम होना चाहिए। बट नाउ द सिनेरियो इज एंटायरली चेंज्ड। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं अबाउट बीइंग मोर सिंसियर, बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड, women will any day score over men. तो I strongly believe कि women can be much better savers, much better money managers, much better investors, and not, last but not the least, much better wealth creators. जितना wealth women create कर सकती उतना men शायद नहीं कर पाएंगे। और उसका रीज़न है wealth creation करने के लिए जो dedication, जो discipline चाहिए वो women में ingrained है। तो दैट इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। सेकेंडली, जब मैं मेरे विमेन क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता हूं, आई सी द सेम क्वालिटीज इन देम। उनके पास सब कुछ है। इफ दे आर वर्किंग, दे हैव अ स्टडी फ्लो ऑफ इनकम। वो अपने जॉब को सिंसियरली करती हैं, इनकम आती है उसको प्रॉपरली मैनेज करती है। मेरा ये पैसा यहाँ जाना चाहिए, ये पैसा यहाँ जाना चाहिए, एंड वेरी मेथोडिकल, वेरी सिस्टमेटिक। Now, the only thing they might be lacking is the financial education कि कहाँ करना है, कैसे करना है, यहाँ पे उनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। और थ्रू माई ब्लॉग जो आपने अभी मेंशन किया professorbajaj.com, उस पे जो रीडर्स आते हैं उसमें से काफ़ी सारे विमेन रीडर्स हैं। मेरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर में काफ़ी सारे विमेन ऑडियंस हैं, एंड दे वॉन्ट टू गेट देमसेल्फ फाइनेंशियली एजुकेटेड so that they can upgrade themselves and they can take those financial decisions. In fact, to share a few anecdotes with you which are very interesting, one of my clients, I am very proud to say, she started her journey with us when she was 22 years old, and at the age of 33 we created her first 1 crore. ठीक है, in 11 years. So हमारे यहाँ पे कई बार होता है कि 35-40 की एज तक आते आते लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूं या इट इज टू अर्ली। यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। यहाँ पे वो 33 की एज में उन्होंने अपना पहला करोड़ बना लिया, 36 की एज में सेकंड करोड़ बना लिया। शी इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग हर थर्ड, सो 3 करोड़ का उनका नेटवर्थ हो जाएगा, एंड शी इज नॉट इवन 40 येट। सो दैट इज द काइंड ऑफ वेल्थ शी हैज क्रिएटेड ओनली थ्रू वन थिंग, उन्होंने अपना डिसिप्लिन, अपना डेडिकेशन। जैसे जैसे जॉब में इंक्रीमेंट मिला, इमीडिएटली शी विल रीच आउट टू मी कि मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, आई वांट टू इंक्रीज माय इन्वेस्टमेंट्स, आई वांट टू वेयर शुड आई इन्वेस्ट, व्हाट ऑल। शी हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज नाइस। आस्किंग क्वेश्चंस इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हो आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हो। सो शी कंटिन्यूज टू डू दैट। Taking another example, there is another lady who started, I think, little late as compared to her. I think she started when she was 35 years old, and she started when she became a mother. तो अभी उनको लगा कि मैं अभी घर पे हूँ, तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम है इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने का। प्लस शी वॉज, आई वुड नॉट से वरीड, बट कंसर्न्ड कि यार अभी चाइल्ड हो गया है, अभी इसका फ्यूचर का क्या होगा, फादर तो इसके बिजी रहते हैं, कौन देखेगा। सो शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, एंड शी वॉज इन्वेस्टिंग नॉट हर ओन मनी, बट स्लोली स्लोली उन्होंने अपने हस्बैंड को भी कन्विंस किया कि आपके पास टाइम नहीं है, आपका पैसा भी मैं मैनेज करती हूँ। सो इट इज द रिवर्स दैट इज हैपनिंग। जो पहले होता था कि विमेन का पैसा मैन मैनेज कर रहे हैं, अभी उल्टा है। मैन बोलते हैं कि यार बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, कितना काम करूंगा, क्या क्या करूंगा। तो व्हाट बेटर देन द लक्ष्मी ऑफ द हाउस हर सेल्फ टेकिंग केयर ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। सो वहाँ पे वो जो लेडी हैं वो मेरे से काउंसलिंग लेती हैं, रीच आउट करती हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो डिस्कस करते हैं। आई थिंक इट्स 10 years दे आर विथ मी। उनका भी पोर्टफोलियो मुझे लगता है 5 CR ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। एंड ये सबके पीछे कोई मैजिक नहीं है, इट इज जस्ट देयर ओन, आई वुड से, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, एंड प्लस जो मार्केट में ग्रोथ आता है, जो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो। सो एनी वुमन, मैं उनसे यही बोलूंगा कि पहली बात तो अपने ऊपर आप ये विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हो, एंड देन जस्ट रीच आउट टू द राइट एडवाइजर। आपने इतना कर लिया, फिर आपका आगे का जर्नी अपने आप स्मूथ हो जाता है। Wonderful. In fact, I'm impressed by the journeys that you have shared of your 2 clients. So one thing is clear, Saurabh, that
it's not capability. Yes. Right? They have enough capability, but what they lack is the confidence. Absolutely. Right? And I think there is a World Economic Forum survey also which says that 3.22 trillion dollar could be unlocked and from the global investment capital Right. if women also invest at the same rate the way men invest. Men are investing, yes. So, just want to understand, like, how do we? What are your advice to the women? How do they manage their personal finances? How do they get that kind of eagerness to no, I have to now start doing the investment, and if they are doing it, then what are the steps that you would like to share with us? Fantastic. So, again, answering it in two parts. One is your question was about capability versus confidence. The capability is absolutely unquestionable. As I told you, they are in fact more capable than men if I have to put that comparison. But yes, the confidence, why the confidence is slightly lacking, I will not say it is missing. Maybe it is systematically, they are made to forget it. So if I can use the example from Ramayana, तो जैसे हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा कि हनुमान जी अपने बचपन में जो बहुत महाशक्तिमान थे और फिर सबको लगता था कि यार ये तो बहुत शैतानी करते हैं, ये तो सब कुछ सूरज को भी निगल जाएंगे और सब कुछ कर जाएंगे, तो उनको मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि आप अपनी शक्ति भूल जाओगे और जब तक आपको कोई अपनी शक्ति याद नहीं दिलाएगा तब तक आपको शक्ति याद नहीं आएगी. आई थिंक द सिमिलर स्टोरी हैज हैपेंड विथ वुमेन कि दे आर वेरी पावरफुल बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर उनको उनकी शक्ति भुला दी गई है, वो अपनी शक्ति भूल गए एंड दैट इज वाई द कॉन्फिडेंस इज मिसिंग. अगर उनको कोई वो शक्ति याद दिला सकता है, आई एम श्योर आपका ये जो आज का वीडियो है, आपका पॉडकास्ट है, ये उनको उनकी शक्ति याद दिलाने में काफ़ी मदद करेगा. एंड वंस दे रियलाइज कि हमको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी कैन डू इट एंड वी विल. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि ये जो 3.22 बिलियन या जो भी नंबर्स बोलते हो, आई एम श्योर द नंबर्स आर मच बिगर देन दिस, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो अभी तक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रिपोर्ट भी नहीं किया है. और ये कौन सा पैसा है वो मैं आपको बताता हूँ. विमेन हैव सम वेरी यूनिक ट्रेट्स. जैसे इफ देयर इज अ होम मेकर, उनको अगर उनके हस्बैंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा देते हैं, वेरी स्मार्टली शी मैनेजेस एंड शी सेव्स सम मनी फॉर हरसेल्फ. ठीक है, ये पैसे का अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, शी आइदर कीप्स इट इन हर वार्डरोब कि ये मैं छुपा के रख देती हूँ, किसी परिवार के लिए या अपने लिए कोई एक काम कर लूंगी, या फिर इसको जो एक विमेन को काफ़ी शौक होता है कि किटीज़ में जाती हैं तो वो किटी में वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देती हैं. अभी कुछ किटीज़ जो होती हैं वो तो ठीक है विमेन की आपस में होती है तो वहाँ पे उनको पैसा वापस मिल जाता है, हालांकि दे लूज आउट ऑन द पावर ऑफ ग्रोथ, वहाँ पे पैसा ग्रो नहीं हो पाता है उनका. समटाइम्स द किटीज आर रन बाय सर्टन पीपल जो बोलते हैं कि आप ये पैसा दो, हम इसको आगे लेंड करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो हम आपको देंगे, एंड सम मॉडल्स रन लाइक दैट. अनफॉर्चुनेटली दीज आर अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे उनके साथ काफ़ी बार फ्रॉड भी होता है, वो पैसा उनका डूब जाता है. और इसमें वन मोर सैडनिंग पार्ट इज, ये पैसा वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करके या पूछ के डिस्कस नहीं करती है. मतलब खुद उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन अभी तक उतना पहुंचा नहीं था, हस्बैंड से उन्होंने डिस्कस नहीं किया, हस्बैंड या किसी से भी डिस्कस नहीं किया, एंड देन दे गेव दैट मनी. अब जब ये पैसा डूब जाता है तो वो किसी को बोल भी नहीं पाती है कि मेरा पैसा डूब गया. सो दिस मनी इज अनरिपोर्टेड, मतलब क्योंकि ये पैसा शायद प्रॉपरली इनकम टैक्स में या कहीं भी प्रॉपरली शो नहीं हुआ था, देयर वाज नो प्रॉपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि पैसा मैंने दिया भी था. सो दे आर लूजिंग मनी. थर्ड इज, मेनी टाइम्स उनको लगता है कि मैं अपने किसी रिलेटिव को दे दूँ, रिलेटिव्स बोल देते हैं कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दूंगा, ये दूंगा, एंड समटाइम्स द मनी डजंट कम बैक एंड अगेन दे डू नॉट हैव द मैकेनिज्म टू रिकवर इट. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने भी जो पैसा बहुत मेहनत से सेव किया होता है, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट वेल्थ. और यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा पॉइंट मिसिंग है कि वो बोलते हैं चलो मैं अलमारी में रख देती हूँ. अलमारी में रखने से क्या होगा, अलमारी में रखने से आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, एंड देयर इज वन मॉन्स्टर दैट विल कीप ईटिंग इट एवरी डे. आई एम श्योर यू नो इट, दैट इज इन्फ्लेशन. ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन उसको खा रहा है. अभी जैसे मान लीजिए कोई पुराने जमाने की दादी जी हैं, उस जमाने में 2 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, उन्होंने अपने अलमीरा में 2-2 रुपए के नोट छुपा के रखे. आज अचानक से उनकी अलमीरा खुलेगी तो 2-2 रुपए के उसमें 1000 नोट निकल आए.
तो उनको तो लगेगा देखो मैंने कितनी मेहनत करके, लेकिन आज 2,000 रुपये निकले, उसकी आज देखने जाएंगे तो वो कुछ उसमें से कर नहीं पाएंगे। और इसी पैसे को मान लीजिए वो इन्वेस्ट करते और वो 2,000 के बजाय वो 2 लाख या मल्टीप्लाई होके मिलते, तो शायद वो पैसा उनके कुछ काम आ सकता। तो आई थिंक दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच इफ women keep in mind and take suitable action towards it, they will not only be able to save their money but also grow it and put it to right use when required. क्योंकि सेव किया लेकिन आपके इमरजेंसी में वो काम नहीं आया, आपके ही बुरे दिन में काम नहीं आया, तो ऐसा समझ लीजिए वो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, इट इज अ बिग ट्रॉमा फॉर देम फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट दे माइट हैव डन ऑल दिस ईयर्स। कि उन्होंने कई बार थोड़ा डिस्टेंस ऑटो नहीं किया होगा कि चलो पैदल चली जाती हूँ 10 रुपये बच जाएगा, कई बार किसी सब्जी महंगी है तो नहीं खरीदी होगी कि चलो 15 रुपये बच जाएगा। ये जो पैसा है अगर वो ग्रो नहीं हो पाया तो आई थिंक इट्स अ बिग लॉस टू ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट दे हैव डन। सो इट विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी पैसा आपने सेव किया है उसको इन्वेस्ट कीजिए एट सच प्लेसेस विच आर रेगुलेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लेसेस जहां पे इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाए, so that the money grows in real terms. Okay, that's wonderful. So, Saurabh, when I was just thinking what you were saying that they are into saving and all, and which eventually does not have that value because of the inflation. So now, my question to you is that I have seen my mom and my mother-in-law. They make investment in the gold, right? And to be very frank, eventually that gold proved one of the best investment. Right. And if you talk about January, leave February month, and Right. if we talk about January, at that time, it was just touching Mount Everest. Okay, Correct. and at that time, I was thinking that I wish I could have invested in the gold. Otherwise, because though I already had some investment, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, I think if I would have invested some more, I could have earn more. Okay, Right. so I had that very bad feeling of opportunity lost at that time. FOMO you say. FOMO, I would say. So just want to understand what should we invest our entire money in the gold, considering that it will have a high impact, high value realization, or there is some proportion that you would like to suggest us? Because yes, women and gold, they both are very much attached, be it any generation. Okay, Right. Since ages we are investing in the gold, and to be very frank, we are benefited because of that investment. But considering all that, whether investing only in the gold is okay, or there is some proportion that you would like to suggest us. Right. So very good question, Shubha. Again, gold के phases हैं, we need to understand. So why once upon a time women were very attached or very attracted towards gold? They are still attracted, but there was a time they were superbly attracted because gold was their ATM. ठीक है, in those days आपका मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, UPI कुछ नहीं था, तो for them the most accessible form of money or wealth was gold, कि जो उनके पास है वो उनका, और वो बिना पूछे उसको यूज कर सकते हैं. So that was the historical reason for having so much love for gold. Now coming to the of late growth in gold, ये जो of late growth in gold है, this is primarily because of the geopolitical risk. Geopolitical risk का मतलब क्या होता है कि जब वॉर सिचुएशन होती है, या इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग वेल, या इकोनॉमीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू वेल, कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, that time everyone rushes towards gold because gold is considered to be a safe haven. Now the moment something is considered a safe haven, उसके ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी एंड ग्रोथ ये कभी हैंड इन हैंड नहीं चलते, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं. लेट्स से अ शिप कहां पे सेफ होगी? शिप कहां पे सेफ होगी? नियर पोर्ट. नियर द पोर्ट. बट अ शिप, is it meant to be kept near the port? No, it is not. वो तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा. Exactly. So that is the same thing कि गोल्ड में आप रहिए, बट गोल्ड कैन नॉट बी 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. आप अगर गोल्ड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स निकालेंगे, आप 30 ईयर 40 ईयर्स के कभी भी रिटर्न निकालिए, यू विल सी द एनुअल CAGR ऑफ गोल्ड इज नॉट मोर देन 8.5%. ठीक है, विच इज नॉट बैड. बट इफ देर आर
एवेन्यूज जहां पे इससे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, व्हाई नॉट? एंड द आंसर टू दैट इज इफ यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें आपके पास गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, इक्विटीज भी है, डेट भी है। कौन सा कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी करेगा, आपके गोल्स पे भी डिपेंड करेगा कि आपको पैसा 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, कब चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स विल मैटर। सो हमारे यहाँ पे ना 2 एक्सट्रीम्स में लोग रहते हैं। एक होते हैं जो बोलते हैं सारा पैसा उठा के गोल्ड में डाल दो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। करेक्ट। दूसरे होते हैं कि यार ये गोल्ड में क्या पड़ा है, सारा पैसा उठा के बिजनेस में डालो या एंड वी से कि बोथ आर रॉन्ग। एक्सट्रीम्स में क्यों जाना है? इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, आपसे यदि मैं पूछूं कि 24 आवर्स है तो 24 आवर्स सोना सही है या 24 आवर्स जागना सही है? No answer for that. I mean, you need to have. दोनों गलत है, Yeah. है ना? आपको अपने 24 आवर्स को इस हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा कि 8 आवर्स यू विल पुट फॉर स्लीप, 1 आवर यू विल पुट फॉर योर एक्सरसाइज, है ना? ऐसे 1 आवर यू विल पुट फॉर रीडिंग में भी, है ना? तो आप जब अपने डे को डिवाइड करोगे तभी जाके वो एक बैलेंस्ड डे बन पाएगा। इफ यू आर हैविंग फूड, आपको कोई बोलेगा कि नहीं बस प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जाओ, इट विल नॉट हेल्प। आपको साथ में विटामिन्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो इट इज द सेम वे विथ योर पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में अनलेस यू हैव ऑल द राइट एसेट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, तब तक वो वेल्थ क्रिएशन भी नहीं होगा, तब तक आपका रिस्क भी कम नहीं होगा। एंड एज यू राइटली सेड कि वो जो अचानक से गोल्ड एंड सिल्वर में जो फॉल आया, वो फॉल आने का मतलब ये नहीं कि गोल्ड एंड सिल्वर खराब है, उसका मतलब यही था कि वो एक अनरीजनेबल सा राइज आ गया था। सिल्वर एक साल में अगर 3 गुना बढ़ जाता है एंड इट कंटिन्यूज टू डू दैट, मुझे बताइए आपको और मुझे काम करने की जरूरत है क्या? व्हाट वी विल डू, विल बाय सिल्वर एवरी ईयर, हमारा पैसा तो 3-3 गुना बढ़ते जाएगा। बट दैट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसा करेंगे ना तो पूरी दुनिया में कोई काम नहीं करेगा, बस सिल्वर खरीद के बैठ जाएंगे। Exactly. Doesn't work like that. So the answer to that is have a diversified portfolio. You can keep gold to the extent of maybe 10% or 15%, silver to the same extent, and very importantly in which form you are buying. जैसे भी कई लोग बोलते हैं कि गोल्ड हम खरीदेंगे इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना है खरीदिए, देन यू बाय इट फॉर कंजम्पशन। आप ये बोलिए कि मैंने पहनने के लिए खरीदा है, फिर वो आपको उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलिए, क्योंकि द मोमेंट आपने ज्वेलरी खरीदा उसमें आपके मेकिंग चार्जेस और ये सब जो आते हैं, 1 लाख रुपए में से हो सकता है 15-20 हजार रुपए तो पहले दिन आपका मेकिंग चार्जेस में चला गया। गोल्ड जो है आपके पास सिर्फ 80,000 का ही आया, तो अब जो ग्रोथ होगा वो 1 लाख पे नहीं होगा, वो 80,000 पे ही होगा। सो फिर लोग उसका दूसरा सोल्यूशन बोलते हैं कि शुड आई बाय गोल्ड बिस्किट्स। अभी गोल्ड बिस्किट्स खरीदोगे, उसको रखोगे कहाँ, उसका स्टोरेज कैसे करोगे? और फिर लेट अस से समवन विल से कि मुझे हर महीने 5,000 रुपया गोल्ड में डालना है। अभी 5,000 रुपए में तो कोई गोल्ड बिस्किट आपका आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे? सो द आंसर टू दैट इज इफ यू कैन बाय गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्ड फंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको प्योरिटी का भी गारंटी मिल रहा है कि प्योर गोल्ड आपको मिल रहा है, इट इज अवेलेबल टू यू इन द डिनोमिनेशन यू वांट, एंड आपको जब भी चाहिए तो आपको उसके स्टोरेज का कोई झंझट नहीं है। आपको जो स्पीड से गोल्ड बढ़ रहा है उस स्पीड से आपका पैसा भी बढ़ रहा है, और जिस दिन आपको चाहिए यू कैन एनीवेज अवेल ऑफ इट। Okay. So do you want to say anytime buying digital gold is better than buying a physical one? I mean, if you are thinking for investment. Right. तो इसमें मैं वर्ड्स को बड़ा ध्यान रखता हूँ। डिजिटल गोल्ड एक अलग चीज है, गोल्ड फंड एक अलग चीज है, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स एक अलग चीज है, तो उसके भी बहुत सारे फॉर्मेट्स है। इट इज बेटर दैट एनीवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस। इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अनरेगुलेटेड भी हैं, Okay. जो डिजिटल गोल्ड के नाम से बोले जाते हैं, बट दे आर अनरेगुलेटेड। सो जैसे कोई किसी को सुन के लगेगा कि हाँ फिजिकल नहीं लेना, डिजिटल लेना, बट डिजिटल में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मेक श्योर कि जिस भी फॉर्म में आप डिजिटल ले रहे हो इट इज अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट एंड नॉट एन अनरेगुलेटेड। Okay. So Saurabh, when we were just discussing, you mentioned about the digital fraud also, okay, which is happening, a lot these days. Right. So, and again, if we there is a reports that suggests that here also 26% more women are being targeted by the financial fraudsters, Right. in terms of frauding those women. So, obviously, anyways, there are women are not taking a lot of risk. They are scared of getting into this investment zone at all. And if these things will keep on happening, obviously they will feel demotivated to make further investment. Right. So, considering that,
what is your advice to our viewers that how do they protect themselves from the digital fraud? Here again, there's one more thing which I want to tell you. People, it's not like I'm educated or I'm not educated. Everyone is actually falling prey to these kind of digital frauds, and unfortunately people are scared of sharing this with the other people because of the shame and what they feel they don't want to share with anybody. Correct. So I don't know, how do we come out of this kind of a situation? How do we protect, despite taking a lot of care also? Sometimes, suppose if I'm very busy in my work and someone calls me and ask, something, it may happen that I may give that information because I'm already engaged in some other work. Right. So just help us. How do we come out of it? Right. So this is a very valid concern. In fact, if I need to give you another bad news is, ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है. सो फ्रॉड्स के अलग अलग तरीके. द मोमेंट वी अंडरस्टैंड कि फ्रॉड्स तो होंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट कि इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल कि जहाँ पे चीनी या गुड़ दिखेगा वहाँ चींटियाँ आएगी. तो जहाँ पैसा दिखेगा वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से उसको लूटने के लिए आएंगे. अनलेस ऑब्वियसली वी हैव वेरी स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज या सिस्टम्स जो उनको नैप कर सके, दिस विल हैपन. नाउ वन थिंग दैट वी नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ इज कि ये सिर्फ विमेन तक सीमित नहीं है. ये फ्रॉड मेन के साथ भी होते हैं, ये यंगस्टर्स के साथ भी होते हैं. जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हमको ज़्यादा टेक्नोलॉजी पता नहीं है, इसलिए हमारे साथ फ्रॉड हो गया. यंगस्टर्स आर ऑल्सो फॉलिंग प्रे टू इट. सो ये सबके साथ हो रहा है, और इसका एक ही तरीका है कि हम सबको अलर्ट भी रहना पड़ेगा, अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा. एंड जो आपने लास्ट पॉइंट जो बोला, जो बहुत अच्छा है, अगर कुछ होता है हमारे साथ, we have to be bold enough to share it. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछता हूँ कि why don't we share. तो जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आप जीत गए, आप किससे शेयर करेंगे? मैं किससे शेयर करूंगी? मैं उससे शेयर करूंगी who is more close to me. Okay. Won't you share with everyone क्योंकि आप जीत गए कंपटीशन? Yeah, है ना? I will definitely share. और मान लीजिए उस कंपटीशन में आप हार गए, आप किससे शेयर करेंगे? Here I would say that I'll share with the one who is more close to me. तो हमारा जो ईगो होता है वो हमको हमारी सक्सेस सबसे शेयर करने के लिए बोलता है. हमारे फेलियर्स किसी को शेयर करने को अलाउ नहीं करता, बिकॉज हमको लगता है वो हमको जज करेंगे, हमको फुलिश समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे. एंड दैट इज वाई पीपल आर शाय कि मैं कैसे बता दूं कि किसी ने, है ना, मुझे चीट कर लिया या किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया. क्योंकि कोई बोल देगा अरे तुम तो इतने होशियार थे, मुझे तो लगा तुम होशियार हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया. इस डर के वजह से वो शेयर नहीं करते. और यहीं पे आई विल अपील टू एवरीवन कि इस डर को साइड में रख के प्लीज शेयर इट, ताकि लोगों को पता चले कि अगर एक फ्रॉड आपके साथ हुआ है, दे माइट बी द नेक्स्ट वन. कल को अगर किसी ने शेयर किया होता तो शायद आप भी बच जाते. एटलीस्ट यू बिकम दैट कैंडल हु इज helping others to see through the darkness. Now, frauds किस किस टाइप के हो सकते हैं? एक होते हैं कि आपको randomly एक मैसेज आता है, your KYC is expired, click on this link and complete your KYC. Right. ऐसी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है. वो लिंक किसने भेजी है, सबसे पहले उस पर्सन से बात कीजिए. अगर वो लिंक बैंक से आई है, अपने बैंक के पर्सन से बात कीजिए. बैंकर्स आजकल मेल भेजते हैं कि हम ऐसी कोई लिंक नहीं भेजते, हमारा पर्सन या तो आपको विजिट करेगा या समथिंग विल हैपन. इट विल नॉट हैपन थ्रू अ लिंक, क्योंकि वो लिंक पे जाके वो आपको बोलता है ओके प्लीज एंटर योर अकाउंट नंबर, प्लीज एंटर योर पैन नंबर, सब हम डाल देते हैं. एक स्क्रीन भी आ जाता है, योर KYC इज डन. KYC नहीं हुआ है, आपके सारे डिटेल्स भाई साहब लेके चले गए. ठीक है, उसके साथ वो क्या करेंगे वो एक अलग स्टोरी. इसके अलावा एक फ्रॉड होता है जिसमें आपको रैंडमली एक कॉल आता है, समवन कॉलिंग यू एंड टेलिंग यू कि अरे आपके क्लोज पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको अर्जेंटली इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ये उनका सर्जरी या उनका ऑपरेशन शुरू हो पाएगा. नाउ वी बिकम इमोशनल, हम सडनली उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, इवन विदाउट चेकिंग विद दैट पर्सन कि भाई तू ठीक है, तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है. दैट पर्सन सेज मैं तो एकदम ठीक हूँ, पता नहीं आपको किसने कॉल की. सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ फ्रॉड दैट इज हैपनिंग.
एंड थर्ड काइंड ऑफ फ्रॉड इज अबाउट द डिजिटल अरेस्ट, जो आपने सुना होगा कि कभी कभार फोन आता है कि एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है और इसके अंदर में कुछ ड्रग्स मिले हैं, है ना, आपको भी मिले तो, और इसके वजह से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है और आपको 2 दिन की बेल अगर चाहिए तो इमीडिएटली आप 25,000 रुपया या वॉट एवर अमाउंट दे विल टेल यू ट्रांसफर कीजिए, तब जाके आपको हम 2 दिन की बेल देंगे जिसपे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ जैसे जैसे आपको ये चीजें पता चलती जाएंगी, आज मान लीजिए वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, जैसे आपने तुरंत बोला कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी लगेगा हाँ यार ये तो मेरे साथ हो चुका है, इसका मतलब फ्रॉड था। नाउ प्लीज कम आउट एंड टेल दिस टू पीपल, बताइए लोगों को कि सो दैट अगर उनको कोई ऐसा कॉल आता है, एंड दिस इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, ये किसी के साथ भी होता है, तो वो ये सोचना हमें बंद करना पड़ेगा कि बिकॉज आई एम अ वुमन तो शायद मेरे साथ ज्यादा हो रहा है। आपके साथ ज्यादा होने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि जो फ्रॉड्स हैं उनको ऐसा लगता है कि मे बी वुमेन आर लेस अवेयर, दैट्स देयर असम्पशन, आई एम नॉट सेइंग दैट्स द फैक्ट, बट इस वजह से वो टारगेट शायद आपको ज्यादा कर सकते हैं, और अगर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो आपको उतना ही सावधान भी रहना पड़ेगा। देखिए टेक्नोलॉजी हो या आपकी नॉर्मल फिजिकल लाइफ हो, कहीं भी कोई आपको चीट करना, रॉब करना इज अ ग्राउंड रियलिटी जो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन जब तक वो खत्म नहीं होती है द ओनली वे वी कैन टैकल दैट इज मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। जैसे मान लीजिए हम आज बोलते हैं कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जूडो कराटे सिखाइए ताकि अगर कोई उनको अटैक करे तो अपने आप अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। आई वुड से दिस इज योर फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस, कि आज अगर आपको अचानक से कोई कॉल करके बोलता है मैडम एक ओटीपी आया है दीजिए, मैडम एक लिंक भेज रहा हूं उस पर क्लिक करके पेमेंट कीजिए, अनलेस यू वेरीफाई, अगर आप बिजी हैं आप 4 घंटे बाद कीजिए, जब आप फ्री हो जाएंगे तब कीजिए। आप बिजी किस में है? कुछ काम करने में जिससे आप पैसा कमा रहे हैं। सोचिए आपने इधर पैसा कमाया और कोई वो पैसा ले गया, That's true. तो पुट दैट ऑन होल्ड फॉर, या अगर आपको लगता है कि ये इतना अर्जेंट है कि इसको 4 घंटे होल्ड पे नहीं डाल सकता, मे बी फिर उस काम से अपने आप को 10 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिए कि आई विल कम बैक टू दिस। बट फॉलिंग प्रे टू फ्रॉड्स इज अगेन आई वुड से अ वेरी बिग डिसरिस्पेक्ट टू योर ओन हार्ड वर्क, कि आप ही ने अपनी मेहनत से इतना पैसा कमाया और कोई आके उसको ले गया। लाइटर नोट पे एक गाने की पंक्ति शेयर करता हूँ, हालांकि इतना क्रेडिट फ्रॉडस्टर्स को देना नहीं चाहिए, बट एक गाने की पंक्ति है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो आपने मेहनत करके फूल खिलाया और राजकुंवर मतलब आई एम रेफरिंग टू द फ्रॉडस्टर्स कि वो उसको ले गए। सो दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। व्हेन यू आर working hard to earn that money, invest that money, let us put some more efforts to safeguard that money. And again as I told you, अगर आपको खुद को लगता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है या इतनी अपडेट्स नहीं है, प्लीज रीच आउट टू एन एक्सपर्ट, प्लीज रीच आउट टू प्रोफेशनल। वो आपको इस सब चीजों में गाइड कर सकते हैं एंड हेल्प कर सकते हैं आपके मनी को सेफगार्ड करने। This is very interesting. You've told me a lot of facts. Well, we all know there are few we keep on reading, but the more we read, the more we get to know. Okay, and every new every new morning we learn a new kind of a fraud which is coming up. And definitely, what you're saying, we need to be very much aware. The more we are getting into the digital world, the more it is important for us to be very aware. So I think it's good, Saurabh, for sharing this. And now a couple of last questions which I would like to ask from you. Sure. So let's talk about the single. We talked about the homemakers. We talked about the working women. I also have a concern for the single women, single earning women, because उनका अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, और they always have this kind of a thing कि because they are the only earner, and they don't have luxury of dual household income, right? So they think that I have to pay my rent, I have to pay my electricity bill, utility, my kids' education, everything they have to do on their own. तो वो लोग अक्सर सोचती हैं कि आई कांट थिंक ऑफ बिग ड्रीम्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आई कांट हैव माई ओन लाइफ, आई मीन द वे आई वॉन्ट, बिकॉज आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी ऑन माई शोल्डर्स. So I just want do you think that it's a myth? And if you think yes, it's a myth, then can you help us to burst that myth, and how these women can also think of a big financial dream for themselves? So Okay. Just advise on that. राइट. सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिग फाइनेंशियल ड्रीम को मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्ड में डिफाइन करूंगा. उसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स.
तो क्योंकि देखिए ड्रीम्स एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम लोग कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं. आई कैन ड्रीम ऑफ बाइंग एन आइलैंड, बट डू माई रिसोर्सेज अलाउ मी टू डू दैट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. आज अगर मुझे अपने इंपॉर्टेंट गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करके, मुझे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस को कॉम्प्रोमाइज करके अगर एक आइलैंड खरीदने का मौका मिले, सो डू आई वांट दैट ट्रेड ऑफ? दैट इज अ क्वेश्चन, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन. है ना, ये हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज तो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी. फाइनेंशियल प्रायोरिटीज बोल लीजिए या लाइफ की प्रायोरिटीज जो है वो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी. कमिंग टू सिंगल वीमेन, यस इट इज चैलेंजिंग, बट इसमें रोल ऑफ इंश्योरेंस कम्स इन टू पिक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपके बाकी गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप सिंगल वुमेन हैं तो आपका सबसे पहले एक टर्म प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, आपको कुछ हो जाता है, देन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कैसे फुलफिल होंगी. सो हैविंग अ सफिशिएंट लाइफ रिस्क कवर, हैविंग अ टर्म प्लान इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. इसके अलावा फिर आते हैं आपके एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाता है, अगेन यू हैव accumulated some money, you have saved some money, एक हॉस्पिटलाइजेशन आया 10 लाख 15 लाख उसमें चला गया, सारा पैसा आपका चला गया. सो हैविंग दोज इंश्योरेंसेस आर utmost important, ताकि इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो फिर आपकी वहां पे मदद मिलती. एंड देन व्हेन इट कम्स टू सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, अगर आप सिंगल मदर है, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, क्योंकि रेंट आपको देना है या जो भी खर्चे हैं वो आपको ये करने हैं. बट देन अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करते हो, एक बजटिंग बनाते हो, इम्पल्स बाइंग को थोड़ा सा अपने चेक में रखते हो, कंट्रोल में रखते हो, एंड इट इज नॉट इम्पल्स बाइंग फॉर योरसेल्फ, इवन फॉर द किड्स. जैसे अभी रिसेंटली मैंने किसी के बारे में सुना, उनकी बच्चे की बर्थडे पार्टी में देयर रिटर्न गिफ्ट का बजट वॉज 10 लाख रुपीज. ठीक है, अभी ये सुन के मुझे वही लगा, एंड इट वाज अ नॉर्मल बर्थडे, 5th-6th बर्थडे, मतलब ऐसे कोई लैंडमार्क बर्थडे भी नहीं था. हालांकि लैंडमार्क बर्थडे में भी करना चाहिए, नहीं दैट्स इंडिविजुअल क्वेश्चन. बट नाउ अगर इस टाइप के एक्सपेंसेस हम लोग करेंगे एंड फिर बोलेंगे कि यार मेरे गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं या मेरे पास सेविंग्स नहीं रह पा रहा है, तो हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड है. तो वहां पे हमें बहुत ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि क्या मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि जैसे आपने कई वुमेन को कहते हुए सुना होगा, आप अगर उनको बोलते हैं कि यू शुड गो फॉर अ वॉक, सुबह वॉक के लिए जाना चाहिए या ये वो, तो उनका जनरली एक्सक्यूज ये होता है, कहाँ सुबह जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों की स्कूल होती है, हस्बैंड का ऑफिस होता है. नाउ यू हैव हर्ड दिस अ लॉट. नाउ अल्टीमेटली दे कैन डू दिस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी बॉडी है ना थकने लगती है, एंड फिर उनको नॉर्मल चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है. सो डू यू वांट टू टेक द एक्शन एट दैट टाइम और यू वांट टू बी स्लाइटली प्रोएक्टिव? दैट इज द क्वेश्चन. तो सेम वे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो शायद से आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, कि आप वो उतना लग्जरी नहीं ले पाओगे कि चलो मेरे बच्चे ने ये मांगा तो ये दे दिया, मेरा ये मन किया तो मैंने ले लिया. ठीक है, आप कर सकते हो, बट देन अगर आपके जो इंपॉर्टेंट गोल्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, फिर आप क्या करोगे? देन दैट एडिशनल टॉय और दैट एडिशनल आउटिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और दैट एडिशनल शो ऑफ, इफ आई कैन पुट इट दैट वेज, कि बोलते हैं ना एक बड़ी शादी की 400 लोग आके खाना खा के चले गए और जिस दिन आपको क्राइसिस आया उन 400 में से एक ने भी आके आपकी मदद नहीं की. सो ये जो सोसाइटल प्रेशर्स है, इसको थोड़ा सा बाहर निकलना, अपने आप में ये विश्वास रखना कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, एंड इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं जो आपको अलाउ कर रहे हैं, देन डू इट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप अगर अपने बोलते हैं ना प्राइमरी गोल्स को छोड़ के ड्रीम्स लग्जरीज के पीछे दौड़ोगे और प्राइमरी गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. अगेन गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे एक जोक चलता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू विमेन, किसी के लिए भी हो सकता है, कि मेरे मोबाइल में मतलब स्पेस का इशू था तो मैंने उसका ओएस ही अनइंस्टॉल कर दिया. मैंने वीडियोस रहने दिए, मैंने अपने फोटोज रहने दिए, लेकिन ओएस अनइंस्टॉल कर दिया, या जो इंपॉर्टेंट फाइल्स चलाने के लिए उनको अनइंस्टॉल कर दिया. अब वो मोबाइल नहीं चलेगा, आपको उसमें से वही चीजें डिलीट करनी पड़ेगी जो नहीं रहने से वो मोबाइल काम कर सकता है. सो सेम इज विथ योर फाइनेंसेस, कि जो जो चीजें आपको लगता है कि ये तो मेरी बड़ी फेवरेट है, इसको मैं कैसे लेट गो कर सकती हूँ, बट अगर वो आपके प्राइमरी गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, देन मे बी यू विल हैव टू थिंक ट्वाइस
and some of them you might have to let them go. Okay, that's very insightful, Saurabh. So you mentioned about the impulse buying. Okay, again, women are very prone to this impulse buying, and 65% of the women admit that they are making a lot of unplanned purchases, especially the social media. Right, this is the biggest culprit, and I think the way, when we open our Instagram and all accounts, and then we see, okay, there's one product, if I'm looking at, it will continue showing me the same product till the time I will not buy that. Okay, Correct. so it is creating that kind of eagerness in my brain that, okay, no, I have to buy it, and that's what is impulse buying, and it is actually leading to a lot of spend, I would say. It's not an investment, it's a spend. Spend. And when we are talking about the investment, what is important, that we have to first save. Okay? Exactly. And unfortunately, if here there is a gap that we are seeing at, okay, earlier, when our earlier generation, they were more into the saving, but now if we talk about the generations that are coming up, they don't believe in saving, and they are more into this impulse buying. How do we ensure that they come out of this impulse buying kind of mode, and because one is like you uninstall your social media account, right? But that is one which we all know, we are aware, but how do we ensure that we don't get into this, and is there any alternative way that you would like to suggest to us? Right. So जैसे कि फिर से मैं आपको बताऊंगा, women in particular, और that अभी ऑफ लेट आई वुड से यंग मेन के ऊपर भी ये स्पिल ओवर हो रहा है, सो आई एम नॉट स्पेयरिंग एनीवन हियर. हम लोगों को एक विश्वास दिलाया जाता है बहुत सिस्टमेटिकली, एंड दिस इज अ प्रॉपर मार्केटिंग एक्टिविटी. हम लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है पिछले 20, 25, 30 सालों से कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे नहीं हैं. हम जैसे हैं वैसे हमको समाज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. Correct. आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो कि एक लड़की है, जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर दोबारा जब जाती है तो कोई एक पर्टिकुलर क्रीम लगा कर जाती है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है. उसने हमारे माइंड में क्या डाल दिया कि आपका जो स्किन टोन है उसके वजह से आपको वो जॉब नहीं मिल रही थी, आपने जैसे हमारा प्रोडक्ट यूज किया आपका स्किन टोन अच्छा हो गया, आपको जॉब मिल गई. नाउ दिस हैज एंटर्ड अवर ब्रेन्स लाइक अ वायरस. देन देयर आर सिमिलर सच प्रोडक्ट्स कि आपकी हाइट कम है इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिल रही है, ये हमारी गोली खाइए, या हमारा ना मिल्क पाउडर जो भी होता है, एनर्जी ड्रिंक पीजिए, उससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो आपको जॉब मिल जाएगी. ये हमारा डिओड्रेंट है, आपको उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही है लेकिन हमारा डिओड्रेंट लगाइए, लड़कियां आपके पीछे भागने लगेगी. नाउ दीज आर सम अनस्पोकन डिजायर्स ऑफ एवरीवन दैट वी वांट टू अट्रैक्ट पीपल, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अट्रैक्टिंग पीपल. आप जैसे हो, आप अपने बिहेवियर से, अपने स्किल्स से भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, नॉट जस्ट बाय योर आउटर अपीयरेंस. एंड दिस इज वेयर सोशल मीडिया, एज यू राइटली सेड, कल्प्रिट आपने छोटा वर्ड यूज किया, आई वुड यूज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड, विलन. एक विलन की तरह वो अपना रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसको फंड करने के लिए एक पूरा कंज्यूमरिज्म इंडस्ट्री है जो जानता है कि अगर आप जैसे हो वैसे खुश रहोगे तो उनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा. तो आपका स्किन अच्छा नहीं है, आप या तो हमारा ये फाउंडेशन लगाइए, या हमारी ये क्रीम लगाइए, या हमारी गोली खाइए. आपके हेयर जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है, आप हमारे पार्लर में आइए, हम आपके हेयर को ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो दैट पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू. क्यों भाई? जैसा हूं वैसे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्या? जैसे हूं वैसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्या? बट दे मेक यू टू बिलीव, एंड दिस इज वेयर आपका इंपल्स बाइंग कम्स इनटू पिक्चर. एक आपको ड्रेस दिखती है, आपके पास एक एग्जांपल होगा कई विमेन का जो एक जनरल कंप्लेन बोलती है कि पहनने के लिए ड्रेस नहीं है और ड्रेस रखने के लिए जगह नहीं है. सो इट इज नॉट कि आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है इसलिए आप खरीद रहे हो, यू आर जस्ट मेड टू बिलीव कि ये पहनते ही तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मतलब. एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग प्लांटेड इन आवर माइंड. तो माय मैसेज टू ऑल विमेन who are watching this podcast is, आप ईश्वर की सबसे सुंदर संरचना हो, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, और ये पूरी दुनिया
आपको ये विश्वास दिलाने में अगर लग जाए, फिर भी आप अपनी सच्चाई को मत भूलिए। आपकी पूरी दुनिया अगर ये विश्वास दिलाए कि आप जैसे हो वैसे अच्छे नहीं हो, जब तक आप मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, प्लीज़ उनकी बातों में मत आइए। आप जैसे हो, जैसे भगवान ने आपको बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे काम करने के लिए बनाया है, एंड प्लीज़ फॉलो दैट। डोंट गेट इनटू दिस इम्पल्स बाइंग। जितना इस इम्पल्स बाइंग में आप जाओगे, उतना आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आपका वेस्ट होते जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Thank you so much, Saurabh. And with this, we have come to end of our session. And yes, I have got a lot of learning from this session. And the major key takeaways for me is like, one is financial discipline, which is very, very important for us to follow, right? The good example which is being given by that lady, the way the more start you earning your increment at each increment level, start increasing your investment as well. So financial discipline is also very important. Second is be very, very aware. Okay. Third, portfolio diversification. And the fourth and the last one, avoid impulse buying. Think that you are the most precious asset created by the God. Hope you all liked it. Happy Women's Day to all my lovely women. Thank you so much, Saurabh, for coming to this show. Pleasure. Thank you so much.